Hello students, welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. Dear students, in last sessions, we have completed chapter 9 and actually as per the instructions regarding Gujarat board, chapter 9 is totally excluded. So I think so if you will skip that chapter for learning, it will be okay. And this chapter, chapter 10, today we are starting, that is microbes in human welfare. We all know the meaning of microbes. It is the short form of microorganisms. And why we are calling them microorganisms? Because they cannot be seen with our naked eyes and we have to take the help of microscopes. So there are certain microorganisms which we know. Actually, in chapter 8, we have discussed about many of the microorganisms, but they were disease causing and they were harmful. Like the malaria, it was caused by Plasmodium. Then even a few of the bacterias like Salmonella typhi, Vibrio cholerae. In this way, even HIV, that is virus. So all these microorganisms in one or the other form, they were harmful because they were disease causing. But in this chapter, the typical meaning of welfare, human welfare. So the microorganisms, they are useful also. And even if we see our ancestral history, the old civilizations, there are so many techniques which are used in daily life, and we are using these microorganisms, or in another way, we can say that they are helping to us. Even some of the microorganisms, they are residing in our alimentary canal and they are helping us. Actually, today, we are going to start with that particular chapter, which is showing the usefulness of microorganisms. That's why the topic name is Microbes in Human Welfare. And the topics which we will discuss, in short, I will be telling you. First of all, microbes, how they are useful in household products. जो हम घर में जनरली हम यूज़ करते हैं और ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प होती है. देन सेकेंडली माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कैसे इंडस्ट्रीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैसे सीवेज ट्रीटमेंट में जो गंदा पानी होता है उसको साफ करने का जो सिस्टम होता है उसको ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सबसे पहले इकट्ठा होता है और फिर उस पानी को साफ पीने लायक बनाया जाता है, पोर्टेबल वाटर बनाया जाता है. सो दिस इज एक्चुअली सीवेज ट्रीटमेंट. तो इसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. देन माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. आई थिंक सो यू आर फेमिलियर विद द टर्म बायोगैस. ठीक है, तो ये एक ऐसे बायोगैस इज दैट प्रोडक्ट, मेनली इट इज मेड अप ऑफ मीथेन and there are certain microbes which are helpful in releasing this methane. तो वो भी हम पढ़ेंगे. एंड उसके बाद माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड लास्टली माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. तो इतने टॉपिक हम इस पूरे चैप्टर में टच करने वाले हैं. तो इस चैप्टर में भी आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद रखने होंगे, उनकी यूजफुलनेस याद रखनी होगी. तो ये पूरा ही चैप्टर मेमोरी बेस्ड है और आपको ज़रूर से आपकी मेमोरी पावर 64 GB की जगह 128 GB और मोर देन दैट, ठीक है, गीगाबाइट करिए, टेराबाइट करिए, इट्स अप टू यू. क्योंकि बायोलॉजी एज वेल एज द अदर सब्जेक्ट्स, दे आर टू बी इनपुट इनटू योर माइंड एंड वेर एवर रिक्वायर्ड दे शुड बी कमिंग आउट, दे शुड कम आउट. तो ये दोनों ही टू वे एक्शन होना चाहिए आपका. तो यहाँ पे अभी हम इनपुट करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर. लेट अस इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल some few facts which are regarding this chapter. Actually microscopic plants and animals as well as microorganisms we are familiar with, क्योंकि biological classification में हमने पढ़ लिया है और kingdom monera से हमने start किया है. kingdom monera, kingdom protista and even kingdom fungi.
तो इनमें मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है. सो माइक्रोब्स आर एक्चुअली प्रेजेंट एवरीवेयर. दैट मीन्स दे कैन बी फाउंड इन सॉइल, in water, in air, even inside our body as a parasite, and that of other animals and plants also. ठीक है. So they are present even at sites where no other life forms could probably exist. That means in extreme conditions also. हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया पढ़ लिए हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा. सो I will be giving you example like they can be found inside the geysers. जो natural geysers होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं. So they are actually thermal vents जिसके अंदर वो present होते हैं where the temperature may be as high as 100 degrees centigrade, and even they can be found in the deep in the soil under the layer of snow several meters thick and even in highly acidic environment. तो सारी एक्सट्रीम कंडीशंस पे कोई भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूर से एग्जिस्ट करते हुए पाए गए हैं. एंड इवन माइक्रोब्स आर डाइवर्स. जैसे मैंने आपको बताया, दे मे बी बैक्टीरिया, सम ऑफ द बैक्टीरियाज, फंगाई, वायरसेस, इवन प्रोटोजोन्स. सो एंड इवन वायरियोइड्स एंड प्रियॉन्स, जिसके बारे में आपने 11th में प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया है. इवन प्लांट क्लासिफिकेशन तो नहीं, सॉरी, बट जनरल जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने पढ़ लिया है. So some of the microbes I am showing here with the help of this figure, and here we will be able to see all these structures. आप शायद इनमें से कुछ पहचानते भी होंगे. जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का है, एंड वी हैव लर्नड अबाउट इट, ठीक है. बट अगर हम इसकी ही बात करें तो दिस स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली, इट इज़ adenovirus which causes respiratory infections. So ये कवर है इसका, आउटसाइड कवर. जैसे आप बैक्टीरियोफेज में देखोगे, ये हेड रीजन, दिस इज कॉलर एंड दिस इज टेल. सो टेल हैज दीज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स विच स्टिक, एंड दिस हेड रीजन इट इज़ हैविंग अ कैप्सिड लेयर, ठीक है. इसके अंदर ही इसका जेनेटिक मटेरियल होता है. तो यहाँ पे भी ये आउटर कवरिंग है. And this C diagram, it is showing rod shaped tobacco mosaic virus. देखो, आप देखो, rod shaped है बिल्कुल, जिसको हम शॉर्ट में TMV बुलाते हैं या पहचानते हैं. एंड इट इज़ मैग्नीफाइड अबाउट 1 लाख to 1.5 लाख x. आप सोचो कितना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन करके आपको ये डायग्राम यहाँ पे बताया है. और इसमें हाईफाई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है. एंड इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, ये तो हमने वायरस की बात की, ये तीनों ही डायग्राम वायरसेस के हैं, और ये तीनों डायग्राम हैं बैक्टीरियाज के, ठीक है. बैक्टीरिया के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है. देयर आर डिफरेंट वेरियस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, लाइक रॉड शेप, जिसको हम बैसिलस बोलते हैं. सो ये सबसे लास्ट वाला डायग्राम है, सी डायग्राम. इट इज़ शोइंग रॉड शेप्ड बैक्टीरियम विच इज़ बैसिलस, एंड इट इज़ ऑल्सो मैग्नीफाइड 1500x. तब जाके इसका ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं. इवन फ्लैजिलास भी हैं विच इज़ हेल्पफुल फॉर मूवमेंट. देन द अपर डायग्राम, इट इज़ शोइंग स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको हम कॉक्कस बोलते हैं, ठीक है. कॉक्काई और कॉक्कस, इट इज़ प्लूरल वर्ड, कॉक्काई इज़ प्लूरल वर्ड. और ये भी 1500x मैग्नीफिकेशन करके बताया गया है. और सबसे पहला डायग्राम है रॉड शेप्ड बैक्टीरियम शोइंग, a rod-shaped bacterium which is also 1500 magnified. So my mistake, ये 1500x का है A डायग्राम, सॉरी, दिस इज 1500x. इसको भी 1500x मैग्नीफाई किया है, बट ये लास्ट वाला जो मैंने गलती से आपको 1500 बोला था, एक्चुअली दिस इज 50,000x. तब जाके इतना डिटेल डायग्राम हम देख सकते हैं, ठीक है. तो ये दोनों ही रॉड शेप्ड हैं. एंड दिस इज, इसके अलावा भी हमने पढ़ा है शेप लाइक स्पाइरलम, जिसका स्पाइरल शेप होता है, या वाइब्रियो, जिसका कॉमा शेप होता है. तो उसके डायग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे इतने टाइप्स के डायग्राम्स हैं.
और अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो ये एक पेट्री डिश है, दिस इज़ अ पेट्री डिश, और यहाँ पे कल्चर मीडियम के अंदर बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो किया गया है लेबोरेटरी में, ठीक है। इसी तरह से ये जो पेट्री डिश है इसके अंदर फंगल कॉलोनी को ग्रो किया गया है। तो इस तरह से भी हम आर्टिफिशियली ग्रो करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। जनरली ये माइक्रो बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। माइक्रो बायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। बिफोर दैट let us see each and every usefulness. Now we are starting the main topics. So here we will learn about microbes in household products. कैसे घरेलू चीज़ों में या घर किचन में, हम बोल सकते हैं किचन और लाइक दैट किचन एक्टिविटीज़ में हम इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते आए हैं और करते रहते हैं। वन ऑफ दी एग्जाम्पल इज़, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगी और आपको भी इसी तरह से याद करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। जनरली अभी तक आपकी मदर करती आई हैं या आपके कोई भी पेरेंट्स में से करता होगा, बट फर्स्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली अभी प्रैक्टिकल्स का कुछ अता पता नहीं है, तो आप ये घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप खुद जो दही जमाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है फ्रॉम मिल्क, वो आप अपनी मदर से या किसी एल्डर से पूछ के अपने आप ट्राई कीजिए, एंड यू विल फाइंड दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स known as lactobacillus and even others, they are actually commonly known as lactic acid bacteria, जिसको हम शॉर्ट में लैब बोलते हैं, LAB। ये वो वाली लैब नहीं है जिसमें आप वर्क करते हो, ये अलग तरह की लैब है, ये बैक्टीरियल लैब है एक्चुअली। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को शॉर्ट में हम LAB बोलते हैं, ठीक है। एंड दे आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग, they actually grow in milk and they convert milk into curd after giving the favorable condition. तो वो favorable condition क्या होती है वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ के ये ट्राई करना, इसी बहाने आप सीखोगे कि कैसे दही बनाया जाता है। ड्यूरिंग ग्रोथ द LAB प्रोड्यूसेस एसिड, जैसे हमने अभी देखा लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस, क्योंकि लैक्टोज शुगर इसमें होता है मिल्क के अंदर, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है विच कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। एक्चुअली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज एन इनोक्यूलम। तो मदर ने आपको बताएंगी वो किस तरह से थोड़ा सा कर्ड हम ऐड करते हैं मिल्क के अंदर, और मिल्क भी हम ल्यूक वर्म लेते हैं, बिल्कुल गुनगुना लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, उसको हम बोलेंगे ल्यूक वर्म मिल्क। एंड दिस टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ these bacteria and therefore they convert milk into curd, and it also improve its nutritional quality by increasing vitamin B12। ये बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना, इवन आपकी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए भी आपको पता होना चाहिए। एंड मिल्क तो एक कंप्लीट फूड माना ही जाता है, बट अगर मैं आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाऊं, तो मिल्क से भी ज़्यादा बेटर कर्ड होता है, ओके, बिकॉज एडिशनली उसमें विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है। सो वी शुड कंज्यूम एटलीस्ट 1 बाउल ऑफ कर्ड एवरी डे, दिस इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। दूसरे एग्जाम्पल्स अगर हम डिस्कस करें तो द डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, idli, is also fermented by bacteria, okay, and the puffed up appearance of duff, it is actually due to production of carbon dioxide gas। आपने देखा भी होगा बबल्स भी डेवलप होती हैं कितनी बार, तो आपको एक्चुअली ये पूरा चैप्टर समझने के लिए एक बार किचन में आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान में आएंगी और याद रहेंगी। Then another example is, similar type of example is preparation of duff which is used for making bread, and it is fermented using baker's yeast।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेकिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए हम बेकर्स ईस्ट यहाँ पे इसका नाम देंगे, और इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. So this is an yeast. We all know yeast is a unicellular fungus. So here we are using fungus. इसके पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया वो हमने बैक्टीरिया का लिया, अब ये एग्जाम्पल फंगस का है. Okay. And a number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by the microbes. For example, next example हम लेंगे toddy. And it is actually a traditional drink of some part of southern India which is made by fermenting sap from palm. क्योंकि palm trees बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और उसके sap से ये टोडी बनाई जाती है. एंड माइक्रोब्स का यूज़ होता है यहाँ पे. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स जस्ट टू मेक दी फूड ऑल्सो. तो इस तरह से ये सब जो फोक पीपल्स होते हैं उनको ये सारे तरीके पता होते हैं, एंड ट्रेडिशनल ये सारी चीज़ें यूज़ होती आई हैं. और अब ये थोड़ी थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बेस पे भी इसका यूज़, प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है. सो दी नेक्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ चीज़. मुझे मालूम है आपके मुंह में पानी आ गया होगा और आपको पिज़्ज़ाज एंड ऑल दैट प्रिपरेशंस याद आ रहे होंगे, क्योंकि चीज़ का नाम आते ही इस तरह की प्रिपरेशंस याद आती हैं, है ना. सो it's very yummy just to remember. So cheese is one of the oldest food items in which microbes were used, and if even different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste, and specificity coming from the microbes used. ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द लार्ज होल्स इन स्विस चीज. दे आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2. क्योंकि जितना ज़्यादा CO2 डेवलप होगा वहाँ पे उतने छेद हो जाएंगे, मीन्स स्पॉन्जी टेक्सचर आएगा. एंड इट इज़ डन बाय द बैक्टीरियम विच इज़ नोन एज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी. तो ये भी साइंटिफिक नेम है जो स्विस चीज़ के प्रिपरेशन के लिए खास काम आता है, तो ये भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा. देन अनदर चीज़ इज़ रॉकफोर्ड चीज़, and they are ripened by growing a specific fungus on them which gives them a particular flavor. तो एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है और दूसरा यहाँ पे फंगस का एग्जाम्पल है. ये तो अच्छी बात है कि फंगस का साइंटिफिक नेम यहाँ पे आपको नहीं दिया है, तो एक चीज़ आपको याद रखनी कम हो गई. ठीक है, सो विद दिस वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर एंड आई होप यू मस्ट बी लाइकिंग इट. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये भी एक अप्लाइड बायोलॉजी या उस फील्ड का है जो एप्लीकेशन के ऊपर ये पूरा चैप्टर है. तो ये स्कोपफुल भी है. अगर आपको फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करके इसमें जाने की इच्छा है माइक्रोबायोलॉजी लेके, तो ये बहुत ही स्कोपफुल ब्रांच है. इसके आगे बहुत ही स्कोप्स हैं, क्योंकि खाना पीना कभी भी कम होने वाला नहीं है. एवरी टाइम उसकी डिमांड रहेगी. तो इस फील्ड में या इससे रिलेटेड रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हो. ओके, सो टुडे वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर. And all these names, though थोड़े तो आपको मालूम होंगे ही, but few names which are new, you have to learn them. Okay, till then, take care. Bye bye students.